Hello students and welcome to next lecture of energy flow in an ecosystem. पिछले लेक्चर में हमने pyramid of energy पढ़ा. We learned about trophic levels. Today we will be learning about types of cycles in an ecosystem. What are types of cycles? Cycles मतलब कुछ particular events, कुछ particular processes जो आपके इकोसिस्टम में रिपीट होती रहती है कंसिस्टेंटली. फर्स्ट इज योर बायोजियोकेमिकल साइकिल. दो द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज वन वे. दो द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज वन वे इज बेसिकली बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ energy of sun which we discussed in the previous lecture. The flow of nutrients is cyclical. All organisms need nutrients for their growth. Study the various components in the figure. Okay. The cyclical flow of nutrients within an ecosystem is called the biogeochemical cycle. Nutrients necessary for growth of organisms are continuously transferred from abiotic to biotic factors and biotic to abiotic within an ecosystem. This cycle operates continuously through the medium of the biosphere formed by lithosphere, atmosphere and hydrosphere. The recycling of biological, geological and chemical sources of nutrients in this process is a complex process and depends upon the level of energy transfer in ecosystem. We all know that flow of energy is one way, but flow of nutrients is cyclical. What is basically cyclical? I told you about calories, I told you about nutrients, that when a producer plants are grown, they are grown with nutrients in them. Then some herbivore eats it, then some carnivore eats that herbivore, then some apex consumer, that is your higher carnivore, eats that carnivore, and then your human or another omnivore eats it. And then that human or omnivore dies. वही nutrients वापस से producer के पास चले जाते हैं through some connection by water or by lithosphere or by air. Lithosphere is your land, hydrosphere is your water, and biosphere is your basic, comprising three of them, and your atmosphere is your air. So this is the cyclical flow of nutrients, that whenever if energy is of one way, if energy is one way transport, nutrients will be cyclical. Not necessary कि आपके nutrients cyclical नहीं है तो energy one way नहीं होगी. Energy हमेशा one way हो सकती है इस particular case में, but your nutrients का flow will always be cyclical. What is the difference or what is the distinguishing main points of gaseous cycle and sedimentary cycle? Sedimentary cycle basically means that when the nutrients travel through land, that is your rocks or soil or some mud. Gaseous cycle, an accumulation of main abiotic gaseous nutrient materials is found in Earth's atmosphere. An accumulation of main abiotic gaseous nutrients is found in Earth's atmosphere. That is, आपके air में, in the presence of air, there are many particular oxides, many particular gaseous materials, that is a nitrogen, oxygen, potassium or anything, ozone. So there are many things that are abiotic. They are non-living things, but are necessary for biotic things, biotic beings, that is your living beings. Includes nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, etc. Sedimentary cycle is what I said, that when the nutrients travel through land. An accumulation of main abiotic nutrient materials is found in soil, is sediment and sedimentary rocks, etc. of the earth. That is your nutrients, that is your abiotic materials are found in rocks or on the land of the earth. Include soil components like iron, calcium, phosphorus, etc. Soil components means what nutrients, what minerals soil comprises of are iron, calcium, phosphorus and many of them. It can also be sodium. The gaseous cycle is a speedier cycle than the sedimentation cycle. Gaseous cycle takes less time to go one round than sedimentation cycle. For example, if CO2 has accumulated in an area, it is quickly dispersed with the wind or absorbed by plants. That is, अगर आपका CO2 कोई भी एरिया में एक्सपोज होता है, कोई भी एरिया में ज़्यादा होता है, तो उस एरिया के प्लांट्स उस CO2 को कंज्यूम कर लेते हैं, या तो वो विंड की वजह से खुद ब खुद डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है. Climatic changes and human activities seriously affect the speed, intensity and equilibrium of these cycles.
आपके क्लाइमेटिक चेंज, आपके कोई भी कैलामिटी की वजह से ये पर्टिकुलर साइकिल पे बहुत असर पड़ता है, ये पर्टिकुलर साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकता है। Hence various aspects of the cycles are extensively studied nowadays. इसके लिए इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग टाइप ऑफ साइकिल्स भी पढ़े जाते हैं। तो आपने पहला वाला पढ़ा, फर्स्ट वॉज योर बायो जियो केमिकल cycle. Next is just your carbon cycle. Carbon cycle, the circulation and recycling of carbon from atmosphere to living organisms and after their death back to atmosphere is called the carbon cycle. Abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic form mainly through photosynthesis and respiration. Hence the carbon cycle is one of the important biogeochemical cycles. Carbon cycle is one of the most important cycles because carbon is an abundant element on earth. One of the most abundant element on earth. Abundant मतलब बहुत सारा, not different, abandoning. So इसका रिसाइकलिंग, इसका सर्कुलेशन इतना तेज है, इतना ज़्यादा है, बिकॉज यू सी बाय फोटोसिंथेसिस plants consume carbon dioxide which contains carbon, then those herbivores eat it. मतलब उनके पास भी अभी कार्बन एलिमेंट है, मतलब उनके बॉडी में या उनके बॉडी में प्रेजेंट है कार्बन एलिमेंट. Then the carnivore eats the herbivore, it also has carbon element. Apex eats the carnivore, it also has a carbon element. Then the omnivore eats the carnivore apex, so उसके पास भी कार्बन एलिमेंट है. अब जब हर ओमनिवोर मर जाएगा तो वो कार्बन एलिमेंट इनडायरेक्टली वाटर के थ्रू या आपके एयर के थ्रू या फिर आपके रॉक्स या सॉइल्स के थ्रू वापस से प्रोड्यूसर के पास ही वो कार्बन एलिमेंट चला जाएगा. तो ये साइकिल आपके नॉन लिविंग से लिविंग थिंग तक या लिविंग थिंग से नॉन लिविंग थिंग तक हमेशा चलता रहता है, ज़्यादा स्पीड में चलता रहता है. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल. Plants convert carbon dioxide into carbohydrates by the process of photosynthesis. Similarly, they produce carbon compounds like proteins and fats. Herbivores feed upon plants, carnivores feed upon herbivores. In this way, biotic carbon is transported from plants to herbivores, herbivores to carnivores, and from carnivores to apex. यही मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी कोई भी टाइप के जो आपके कंज्यूमर्स है वो कैसे कैसे खाएंगे और कैसे कैसे वो अबायोटिक कार्बन जो बना है, नेचुरल कार्बन जो बना है, वो कैसे पूरे सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करेगा. Eventually, after death, all types of consumers are decomposed by decomposers like bacteria and fungi, and carbon dioxide is released again into the atmosphere and is used again by living organisms. In this way, carbon is continuously passed on from one living organism to another. After the death of living organism, carbon goes to atmosphere and is again taken up by living organisms. इट कैन बी आइदर वे. अगर आप बॉडी को दफना दोगे तो आपके सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, आपके सॉइल में कार्बन कंटेंट होगा. अगर आप उस बॉडी को जला दोगे तो वो एटमॉस्फेयर में CO2 रहेगा. एटमॉस्फेयर से थ्रू फिर से वो प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स या ट्रीज जो है वो फिर से उसको कंज्यूम कर लेंगे. तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल चलता ही जाएगा. Carbon dioxide is released into the atmosphere through abiotic processes like burning of fossil fuels and wood, forest fires and volcanic activity. Oxygen is released into atmosphere by biotic process of photosynthesis and CO2 through respiration. Equilibrium of oxygen and carbon dioxide gases in atmosphere is maintained by plants. That is why when you are sometimes staying in a concrete jungle, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स वाले एरिया में रहते हो तो आपको मोस्टली ज़्यादा हवा नहीं चलती, मोस्टली ज़्यादा गर्मी लगती है. वाई? बिकॉज वहाँ पे प्लांट्स नहीं है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मेन बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से आपको हवा नहीं चल रही है, जिसकी वजह से आपको गर्मी लग रही है. मतलब वहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड होता जा रहा है कि मतलब अगर हवा चल भी रही है तो गर्म हवा चल रही है और आपको रहने में, सांस लेने में तकलीफ हो रही है. ये पॉल्यूटेड एरिया में भी होता है, जैसा अभी दिल्ली में हो रहा है. वो तो अलग बात है, वहाँ के लोगों को आदत हो गई होगी. बट जितना वहाँ पे पोल्यूशन है, वहाँ पे आपको सुबह उठोगे तो आपको आपसे 1-2 मीटर, मतलब 1-2 मीटर तो कम हो रहा है, 8-10 मीटर दूर तक की चीज़ें भी नहीं दिखती.
क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ गैस जो है वो बहुत फॉगी हो रही है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो फॉग से रिलेटेड होते हैं वो तो मोस्टली दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पोल्यूशन की वजह से स्मोक इतना हो गया है, स्मोक इतना बढ़ गया है कि आपको गाड़ी से ट्रैवल करते वक्त आप लाइट चालू रखो नहीं रखो वो तो भी नहीं दिखने वाला आगे का। तो इसलिए नॉर्मली कहा जाता है कि जितना हो सके उतना आप इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश रखो, जो फिलहाल महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उन्होंने 600 एकड़ ज़मीन जो है फॉरेस्ट के लिए रिजर्व करके रखी है। सो दैट्स अ गुड थिंग इफ़ इट्स इम्प्लीमेंटेड, इफ़ द बिल इज पास देन इट इज़ गुड, बट अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो कर देना चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टुवर्ड्स इकोलॉजिकल बैलेंस। सो द नेक्स्ट वन इज योर ऑक्सीजन साइकिल। The oxygen cycle. Oxygen forms 21% of atmosphere. ऑक्सीजन 20% लगभग 21% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एयर में तो है, पानी में भी है और आपके लैंड में भी है ऑक्सीजन। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन का रिसाइकलिंग और सर्कुलेशन ही उसको ऑक्सीजन साइकिल कहलाता है बायोस्फीयर में। दिस cycle too includes both the biotic and abiotic components. Oxygen is continuously produced as well as used up in atmosphere. ऑक्सीजन एक ऐसा पर्टिकुलर गैस है जो कंटिन्यूसली यूज भी हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस भी हो रहा है। कंटिन्यूसली यूज कौन कर रहा है? लिविंग बींग्स कर रहे हैं, जिनको सांस अंदर लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और सांस बाहर देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। लिविंग बींग्स और कौन से कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, एक्सेल करते हैं? वो आपके प्लांट CO2 इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं। देयर इज नो एनिमल हु विच एक्सेल्स ऑक्सीजन एंड ऑल्सो इनहेल्स ऑक्सीजन। ये सब बेतुकी बात है, इस पर ध्यान मत दो कोई भी। Oxygen is continuously produced as well as used up in the atmosphere. Oxygen is highly reactive and it readily reacts with other elements and compounds. As oxygen is found in various forms like molecular oxygen, water, carbon dioxide, inorganic compounds, etc. The oxygen cycle of biosphere is extremely complex. Oxygen is released in the process of photosynthesis, whereas it is used up in processes like respiration, combustion, decomposition, corrosion, rusting, etc. ऑक्सीजन का साइकिल इतना कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीजन क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड में देखा, कार्बन डाइऑक्साइड में कंज्यूम भी हो रहा है और दिया भी जा रहा है। और ऑक्सीजन के टाइम पे कंज्यूम बहुत वेज में हो रहा है, पर जो एक्सहेल हो रहा है, जो गिव आउट हो रहा है ऑक्सीजन, वो बहुत कम हो रहा है। क्योंकि आपके ऑक्सीजन को गिव आउट करने की प्रोसेस सिर्फ फोटोसिंथेसिस इसमें दी हुई है, पर ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए आपका कंबशन है, आग जलाना जिसको कहते हैं। फिर आपका रेस्पिरेशन है, बेसिक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमंस का होता है वो। देयर इज योर डिकम्पोजिशन मतलब आपका बॉडी सड़ता है, या कोई भी बायोटिक लिविंग बीइंग का जब बॉडी सड़ता है तो उसमें भी ऑक्सीजन यूज होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव। देन देयर इज करोजन मतलब कोई भी मेटल को जंग लगने लगता है, कोई भी मेटल करोड होने लगता है, सड़ने लगता है, तो उसमें भी ऑक्सीजन का हाथ होता है। देन देयर इज योर रस्टिंग भी एक ही चीज़ हो गई। नेक्स्ट इज योर नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन कंटिन्यूसली रिसाइकिल और सर्कुलेट होता है। नाइट्रोजन फॉर्म्स 78%, दैट इज मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में, 78% जगह लेता है और सबसे ज़्यादा अबैंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर। इट इज़ नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ साइकिल ऑफ नेचर। ये ऑक्सीजन सारी साइकिल्स को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन को गैस इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स थ्रू वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेसेस इन नेचर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। यही चीज़ है कि बायोटिक और अबायोटिक से लेकर अबायोटिक से बायोटिक तक जब नाइट्रोजन सर्कुलेट हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है, उसी को नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन साइकिल। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स एज compared to other elements. It is inactive and does not easily combine with other elements. Most organisms cannot use the free form of nitrogen.
मतलब कि नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं है, पर नाइट्रोजन नेसेसरी है आपका बैलेंस मेंटेन करने के लिए। उसी से आपके प्रोटीन्स बनते हैं, उसी से आपके न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, पर ये इसका नॉर्मल फॉर्म में ज़्यादा रिएक्शन होता नहीं, इसके नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा कोई ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं करता। इसका मेन प्रोसेस क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स थ्रू एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। कि मतलब आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन का बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या होता है, आपका नाइट्रोजन जो एयर में जो नाइट्रोजन है वो आपके इंडस्ट्री, वो आपके व्हीकल्स, वो आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स निकलते हैं उनको कन्वर्ट करने में मदद करता है। एमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपकी बॉडी जब वेस्ट एक्सक्रीट करती है, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो या प्लांट हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ अमोनिया रहता है तो उसको आपका जो नाइट्रोजन है वो मदद करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया रिलीज ना हो और वो बैलेंस भी मेंटेन रहे। नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट। नाइट्राइट से लेकर नाइट्रेट तक आपका नाइट्रोजन उस अमोनिया को कन्वर्ट करने में मदद करता है। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब कि आपका कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन, कि जो सॉलिड फॉर्म है, जो आपका इंडस्ट्रियल आउटलेट है, इंडस्ट्रीज से बाहर जो कचरा जाता है जिसमें अमोनिया प्रेजेंट होता है, उसको डीनाइट्रिफिकेट करने में, मतलब उसके नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को गैसियस बनाने में आपका ये 78% नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में वो मदद करता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आपने देखा कि ऑक्सीजन साइकिल कितना कॉम्प्लेक्स है, आपने देखा नाइट्रोजन साइकिल में कितने प्रोसेसेस हैं, आपने देखा कार्बन साइकिल कौन सा सबसे तेज साइकिल है, आपने देखा कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो रॉक्स के थ्रू या दैट इज सेडिमेंट्री साइकिल के थ्रू कैसे जाता है, गैसियस साइकिल के थ्रू कैसे जाता है। आपने देखा कि गैसियस साइकिल कितना फास्ट है सेडिमेंट्री साइकिल से। सो दिस लेसन इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लेसन। बस इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आपको गूगल करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स अ वेरी इजी लेसन। एंड प्लीज़ जस्ट लेट मी गिव यू वन रिमाइंडर कि अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से ही पढ़ो, बट अगर कोई ऐप से पढ़ रहे हो, कोई दूसरा ऐप ले लो, नॉट सेइंग कि आप सिर्फ यही वीडियो यूज़ करो, आप गूगल यूज़ कर लो, चाहिए चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, अगर आप कोई भी टेस्ट लिख रहे हो, भले ही यहाँ हो या फिर अगर आप कोई स्कूल का टेस्ट लिख रहे हो या कोई एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो, सो डोंट गिव दिस रीज़न कि सर ऐप में तो ये लिखा है। अगर आपको टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट ने दी है, एग्ज़ाम गवर्नमेंट ले रहा है, तो आपको ऐप गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो आप जब उधर मुँह फाड़ के बोलोगे कि सर मुझे ये ऐप में बताया गया कि ऐसा आंसर है पर टेक्स्ट बुक में ऐसा है, तो मैंने ऐप का लिखा, तो उसमें आपका आंसर रॉन्ग ही गिना जाएगा, क्योंकि आपको सिंपली क्या दिया है, ये बुक दिया हुआ है, ये बुक दिया है मतलब क्या है, ये आपका पोर्शन है, यही आपका करता धरता है आपको एग्ज़ाम में पास करने के लिए। आपको ऐप वाला जो डेवलपर है वो आके नहीं बोलेगा कि सर इसको राइट मार्क्स दो, मैंने ऐसा बताया। आपका ऐसा नहीं चलेगा। आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर है आप वो लिखो, टेक्स्ट बुक जो दिखा रही है वो पढ़ो। आप चाहिए तो आउट ऑफ सिलेबस जो आपके गूगल है, विकीपीडिया है, इसको यूज़ करो, बट कोशिश करो कि जो भी आंसर लिखो वो इस पर्टिकुलर बुक से लिखो, नॉट फ्रॉम सम ऐप और वेबसाइट। ऐप, वेबसाइट ये सब रिसर्च के लिए अच्छा है, बट अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स आजकल ये मिस्टेक कर रहे हैं। ट्राई टू रिमेंबर दिस points, try to understand this lesson by reading on your own. Till then, take care, stay home and stay safe.